Welcome student in biology class. In previous video we describe about the flower, parts of flower. We also discuss about the unit of the flower parts. Okay. Types of flower we also discuss. Today we describe the next topic, that is the development of male gametophyte in angiosperm. Okay. Before we discuss about the development of male gametophyte, we discuss the sexual reproduction. What is the sexual reproduction? Sexual reproduction is a biological process in which there is the fusion of gametes and they form new offspring. In sexual reproduction there are three events occurs. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थ्री इवेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैमेट फॉर्मेशन. दिस इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस. ओके. आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन सेकेंड इवेंट दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन. गैमेट फॉर्मेशन के बाद उसमें गैमेट में फ्यूजन होता है. द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. थर्ड वन आफ्टर फर्टिलाइजेशन that is development of the fruit or seed. The step is known as the post fertilization. That is clear. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थ्री इवेंट्स होते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड वन पोस्ट फर्टिलाइजेशन. दैट इज क्लियर. प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स ग्रोथ पीरियड. दिस इज कॉमनली नोन एज द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस. क्लियर हो गए. So next topic we discuss here is the development of male gametophyte. Okay, in previous video we also discussed about the parts of flower. You see here is the elongated structures. Okay, we discuss in letters. Here we discuss the development of male gametophyte. In development of male gametophyte we study about the different topic. First one is the stamen, and second that is the structure of anther. Okay, microsporangiums, etc. So first we discuss here is the stamen. What is the stamen? So you know about them, the male reproductive part of flower, that is known as androecium. The unit of androecium, that is known as stamen. Stamen it is the male reproductive unit of angiosperm. एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो यूनिट है मेल गैमेट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दिस इज नोन एज द stamen. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. इसमें दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट. फर्स्ट जो लॉन्ग लंबा और स्लेंडर का स्ट्रक्चर होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं. सेकेंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर. जो टर्मिनल पार्ट होता है वहाँ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉमनली नोन एज एंथर. वेयर द एंथर दैट इज अटैच्ड विद द फिलामेंट, दिस इज नोन एज द कनेक्टिव. ठीक, कनेक्टिव टिश्यू द्वारा ये जुड़े होते हैं. यू सी हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमेन. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमेन का है. दिस इज द एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स और ये फिलामेंट होता है और जहाँ पे जुड़ते हैं उसको हम कनेक्टिव बोलते हैं. क्लियर. टीएस इसका सेक्शन देखिए. इनसाइड द एंथर देयर इज द एंथ्रो sporogenous tissue are present which are responsible for the development of male gametes.
Okay, we discuss later. That is clear about the stamen. Structure of anther की बात कर रहे थे. You see the structure of anther here. A typical angiospermic anther is bilobed structure with each lobe having two theca. ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और एक थीका में एक लोब में दो थीका मीन्स डाइथिकस प्रेजेंट होते हैं एंड सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप रनिंग लेंथ वाइज, और ये लेंथ वाइज एक दूसरे से सेपरेट भी रहते हैं. इन ए क्रॉस सेक्शन द एंथर ऑफ फोर साइडेड structure consisting of four microsprangia located at the corner. You see here there is the four corners are present. ठीक, और each corner that contain the microsprangia. Later the microsprangia developed and become pollen sac. ये developed कर जाता है किसमें? pollen sac में, which are packed with the pollen grain, जिसके अंतर्गत pollen grain present होते हैं. Clear? Next one, microsprangiums. When we see the structure of TS section of the anther, you find the different part. First we discuss about the microsprangiums. Microsprangiums, a typical microsprangium is surrounded by four wall layers. अब एक microsprangium की बात करें, they are कवर्ड या सराउंडेड बाय फोर लेयर्स. इसके चारों तरफ फोर लेयर प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज द एपिडर्मिस, सेकेंड वन एंडोथेसियम, थर्ड वन मिडिल लेयर एंड फोर्थ टैपिटम. ओके, द आउटर थ्री लेयर्स मीन्स एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर. द आउटर थ्री लेयर wall are protective the function and help in the essence of anther to release pollen grain. ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है और एंथर को हेल्प करता है किसके लिए? रिलीज द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के ट्रांसफ़र के लिए, पॉलिनेशन के लिए या रिलीज करने के लिए. टैपिटम, दिस द इनर मोस्ट लेयर. Tapetum, this is the innermost layer, nourishes the developing microspore or pollen grain, and the cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. ठीक है, जो इनर लेयर होता है वो टैपेटम लेयर होता है, विच प्रोवाइड द नरिशेस फॉर द माइक्रोस्पोर और pollen grain which are developed inside them. They have the more than one nucleus. एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. यू सी हियर इज द स्ट्रक्चर्स. ये फोर कॉर्नर्स थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जहाँ से डेवलप्ड होता है. माइक्रोस्पोरेंजियस को बोलते हैं. व्हेन वी कट दिस सेक्शन, यदि ये सेक्शन को कट करते हैं स्पोरेंजियम को, यू फाइंड द डिफरेंट लेयर हियर. आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, देन एंडोथेसियम लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर दैट इज नोन एज द टैपेटम लेयर. ठीक है, टैपेटम लेयर दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशेस द food that is developed inside the microsporogenesis process के थ्रू जो pollen grain developed होते हैं. That is clear? When the anther is young, a group of completely arranged homologous cells called the sporogenous tissue. ठीक है, जब एंथर यंग होता है एक कम्प्लीटली अरेंज टिश्यू होमोलोगस सिमिलर टाइप ऑफ सेल से प्रेजेंट होता है, बना होता है, जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं. ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, जो चारों माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू. ओके, each cell of the sporogenous tissue is a potential pollen mother cell or microspore mother cell and can give rise to the microspore tetrad. प्रत्येक जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है यह रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ pollen mother cell या microspore mother cells which are give rise to microspore tetrad, जो microspore tetrad का ये फॉर्मेशन करता है. And this process of formation of microspore from a pollen mother cell
through the process of meiosis is called the microsporogenesis. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? ये प्रोसेस है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ formation of microspore from a pollen mother cell through the process of meiosis is called the microsporogenesis. Clear? You see here the structures. मेगास्पोरोजिनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है. उसमें मियोसिस डिवीजन होता है. मियोसिस से 2 सेल्स फॉर्मेशन होता है. मियोसिस फर्स्ट से एक पेरेंट सेल से 2 सेल बनते हैं. मियोसिस सेकेंड में 2 से 4 बनते हैं, मतलब टेट्राइड बनते हैं. एंड टेट्राइड सेपरेट हो जाते हैं. देन माइटोसिस अकर्स, मींस दैट डेवलप ऑफ द हैप्लॉइड गैमेट्स या माइक्रोस्पोर्स. दैट इज क्लियर. एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, the microspore dissociate from one another and form tetrad and develop into the pollen grain. ठीक है. जब एंथर मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट वाटर भी रिलीज हो जाता है, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाते हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं, एंड फॉर्म टेट्रॉइड. टेट्रॉइड स्ट्रक्चर जो यहाँ फॉर्म है, इस तरह का फॉर्मेशन होता है टेट्रॉइड्स, एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन. और ये क्या फॉर्मेशन करते हैं? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं. दैट इज क्लियर. इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन आर फॉर्म. एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 1000 नंबर में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर. और ये एंथर के द्वारा डेहिसेंस हो जाते हैं. दैट इज क्लियर. द डेहिसेंस ऑफ एंथर अकर्स थ्रू द रप्चर ऑफ एंथर लोब वॉल्स विच कॉज द रिलीज ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ पोलन ग्रेन एट टाइम. ठीक है. ये डेहिसेंस किसके थ्रू होता है? एंथर वॉल जो आउटर लेयर थे वो ब्रेकिंग डाउन होता है, उसके द्वारा पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में. दैट इज क्लियर. ओके. Okay, what is the stage of development of pollen grains or maturing? तो pollen grain की बात करें, it is the haploid uninucleate and minute spore produced in the large number by meiosis in the microspore mother cell. ठीक है. pollen grain जो होता है haploid होता है, uninucleate के होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. कहाँ होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल में. It has 2 layer wall. Outer hard layer exine. It is made of the sporopollen. It is the most resistant organic material as it can withstand high temperature and strong acid and alkalis. ठीक है. जो आउटर लेयर होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है और यह इजीली आपका डिग्रेडेबल नहीं होता. हाई टेम्परेचर भी अफेक्ट नहीं इस पर पड़ता, स्ट्रॉन्ग एसिड का भी अफेक्ट नहीं पड़ता, अल्कली मटेरियल का भी इस पर अफेक्ट नहीं पड़ता. नो नोन इंजाइम्स कैन डिग्रेड इट. कोई इंजाइम ऐसा नहीं जो जाना जाता है जो उसको डिग्रेड करता हो. द पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स. इसीलिए जो पोलन ग्रेन होते हैं फॉसिल्स के रूप में भी मिलते हैं. Pollen grains have prominent distal aperture for the germination called the germ pore. इसमें एक पोर्स प्रेजेंट होता है जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं. वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट. और इस एरिया में स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता जहाँ जर्म पोर होता है. द इनर इंटाइन लेयर इज थिन एंड चिपली कंपोज्ड ऑफ सेलोज एंड पेक्टिन. जो इनर लेयर होता है वो थिन होता है एंड दिस इज मेड ऑफ द सेलोज एंड पेक्टिन. इन दोनों का बना होता है. पोलन ग्रेन इज पार्शली जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंटिंग द मेल गैमेटोफाइट. ठीक है. मेल गैमेटोफाइट में डेवलप करते हैं. ईच मैच्योर पोलन ग्रेन इज एंजियोस्पर्म हैज 2 cells, द जनरेटिव सेल्स एंड वेजिटेटिव सेल्स.
ठीक है। इस जो एंजियोस्पर्म के जो पॉलन ग्रेन होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं, वन इज द जेनेटिव सेल एंड अदर इज द वेजिटेटिव सेल्स। जस्ट लाइक यू सी हियर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, डेवलप किया है वैक्यूल्स न्यूक्लियस। इसमें डिवीजन होता है, जो लार्जर पार्ट होता है जिसमें एज द वेजिटेटिव सेल, जो स्मॉलर पार्ट होता है जिसमें एज द जनरेटिव सेल्स। दैट इज क्लियर। The vegetative cell is larger, has abundant reserve food material and a large vacuoles। ठीक है, जो जनरेटिव सेल्स होता है उसमें लार्जर पार्ट होता है पोलन ग्रेन का, एंड दे हैव द रिजर्व फूड मटेरियल, उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, एज वेल एज द लार्ज न्यूक्लियस आर प्रेजेंट विच इज़ द इरेगुलर शेप्ड, और उसका न्यूक्लियस इरेगुलर शेप्ड होता है। वेयर एज द जेनेटिव सेल इज स्मॉल स्पिंडल शेप्ड and float in the cytoplasm of the genetic cells। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इन जेनेटिव सेल्स में, सॉरी इज द प्रेजेंट इनसाइड द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में प्रेजेंट होता है जेनेटिव, साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल के जेनेटिव सेल्स में प्रेजेंट होता है। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली नॉर्मली, यदि हम एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो नॉर्मली जो मैक्सिमम जो पॉलन ग्रेन होते हैं मैच्योर स्टेज में, स्टेट एट द टू सेल्ड स्टेज इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म। 60% जो एंजियोस्पर्म होता है, जो पॉलन ग्रेन मैच्योर ट्रांसफर होता है, वो टू सेल्ड स्टेज का होता है। टू सेल्ड स्टेज कौन सा? वेजिटेटिव सेल एंड जेनेटिव सेल का होता है। दैट इज क्लियर। In the remaining species of generative cell divide mitotically and give rise to the two male gametes before pollen grains are shed। ठीक है, जो रिमेनिंग मतलब 40% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो उसमें पहले जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट बनाता है, मीन्स 3 सेल्ड स्टेज का पॉलिनेशन होता है। ठीक है, दैट इज क्लियर। ओके, ओके, दैट इज क्लियर। पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं तो पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर के क्लियर हो गए आपके। जो पॉलन ग्रेन का वॉल होता है, दे आर 2 लेयर आर फॉर्म। आउटर इज द स्पोरोपोलिन, एग्जाम जिसको कहते हैं। स्पोरोपोलिन इज नॉट डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम्स, किसी भी एंजाइम्स को डिग्रेड नहीं होता, एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। ये किसी से भी वो डिग्रेड नहीं होता। ठीक है, इसीलिए पॉलन ग्रेन को फॉसिलाइज किया जाता, रखा जाता है। और इंटरनल जो लेयर था किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है, ओके, वी डिस्कस हियर इज द स्ट्रक्चर की बात तो कर ही लिए थे। सेकेंड पार्ट है इसका पॉलन वाइबिलिटीज। व्हाट इज द पॉलन वाइबिलिटी? वाइबिलिटी पीरियड क्या होती है? इट इज़ द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। ठीक है, यह पीरियड पॉलन ग्रेन का होता है विच रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। कितने समय तक वो अपने आप को जर्मिनेट स्टेबल कर सकता है, कितने समय बाद वो जर्मिनेट कर सकता है, वो उसकी स्टेबिलिटी होती है। पॉलन ग्रेन वाइबिलिटी इज लिटिल इन फ्लावर विच आर पॉलिनेटेड इन बड कंडीशंस। ठीक है, पॉलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी फ्लावर में होती है बहुत कम होती है। इट इज़ 30 मिनट इन राइस एंड वीट्स। राइस और वीट में बात करें तो कितना समय का होता है? 30 मिनट की पॉलन वाइबिलिटी होती है। In other, the period of viability is long, even month in some members of family Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae। कुछ में तो बहुत लॉन्गर होता है। ठीक है, मंथ हो सकता है, ईयरली भी हो जाता है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ साइकस। ओके, इन हाउ एवर डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन पर।
It is possible to store pollen grain of ear in liquid nitrogen. इसको स्टोर करके भी रखा जा सकता है वाइबिलिटी कंडीशन में इन लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर इन ए पोलन बैंक। ठीक है, पोलन बैंक में इसको स्टोर करके रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस एट नाइट्रोजन लिक्विड मीडियम में इसको रखा जाता है, विच आर यूज फॉर द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, जिसका हम बाद में प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द pollen allergy. Pollen grains are produced in large number. नॉर्मली pollen grain लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज दैट pollination occurs. ठीक है, तो कुछ पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंचते। दैट इज क्लियर, कुछ नहीं पहुंच पाते। ओके, स्पेशली इन द Anopheles species. Anopheles, you know about them, means the pollination occur through the wind. उसको एनोफिला बोलते हैं। ठीक है, सम इंडिविजुअल डेवलप एलर्जी टू देम प्रोड्यूसिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक राइनिटीज, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। कुछ इसके स्पीसीज जो पोलन ग्रेन के हैं, दैट इज द कॉजेज द डिजीज सम डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिजीज जस्ट लाइक राइनिटीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ पोलन एलर्जी इज कैरेट ग्रास। जो मेजर एलर्जी कॉज करता है वो कैरेट ग्रास है। दिस इज कॉमनली नोन एज द पार्थेनियम। एवरीवन सी द पार्थेनियम, जिसको हम गांव में बोलते हैं चटक चांदनी। आपको हर जगह देख सकता है, जो फील्ड खाली हो वहाँ पर मैक्सिमम ये ग्रोथ करते हैं। वाइट वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। It enter India as the contaminate with the imported wheat but has spread in all part of countries. ठीक है, यह इंडिया में एक्सपोर्ट जब वीट का किया गया था अमेरिका से, उसके साथ इंडिया में आया था और उस समय से लेकर अब पूरे इंडिया कंट्री में हर जगह ये स्प्रेड हो चुके हैं, फैल चुके हैं। अनदर स्पीसीज प्लांट के जो कॉज करते हैं एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे चीनोपोडियम्स है, एमरंथस है, शार्गम है, शाइनोडॉन है। इसके भी जो स्पीसीज है, इसके पोलन ग्रेन दैट इज आल्सो कॉजेज द एलर्जी। यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, उसको पहले ही बता देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आउटर लेयर होता है स्पाइनी होता है, दिस इज मेड ऑफ द स्पोरोपोलिन। ठीक, इनर लेयर जो होता है वो थिन होता है, आउटर लेयर थिक है। दैट इज क्लियर। इनर लेयर देखिए बिल्कुल थिन है। एक्साइन आउटर लेयर को बोलते हैं, इनर लेयर एंटाइन। ठीक है, और जर्म पोर प्रेजेंट होता है जहाँ पर आउटर लेयर एब्सेंट हो। ठीक है, इसमें आपको दिखाया है, बट देयर इज द आउटर लेयर इज एब्सेंट हियर, मतलब स्पोरोपोलिन यहाँ कवर्ड नहीं होता। तो पोलन जर्मिनेट जब करता है तो यहाँ से जर्मिनेट करता है। एंड इस पोलन ग्रेन दे कंटेन 2 मेल गैमेट्स। जब जर्मिनेट करेगा तो 2 मेल गैमेट्स में प्रेजेंट रहेंगे। दैट इज क्लियर। ओके, you write on the videos, like them, share and subscribe, and also write some comments. Okay, thank you for watching the videos.